نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو گئے نور تیرا سب گھرانہ۔ آئے تو حق کا پتہ مل گیا، آئے تو حق کا پتہ مل گیا، ورنہ کس کو پتا تھا کہ خدا کون ہے؟ اور مانتا اس لیے ہوں کہ مختار ہوا، بول دیجیے مطلب کہ مانتا اس لیے ہوں کہ مختار ہوا، ورنہ مختار سے مانگتا کون ہے؟ اور عرش پہ جا پہنچے تو رب نے کہا، عرش پہ جا پہنچے تو رب نے کہا، آپ ہی جاؤ تمہیں روکتا کون ہے؟ آپ ہی جاؤ تمہیں روکتا کون ہے؟ بھائی اسی کے ساتھ میں آپ کو نعت کی دنیا سے ہٹا کر ایسے خطیب خطیبہ میں چلو جن سے میری مراد حضرت اللہ حضرت علامہ و مولانا مفتی عارف حسین کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آئیے حضرت کا ویلکم نعرے تکبیر اور نعرے رسالت کے جھنکار سے کرے اور لگائے میرے ساتھ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان تاج الشریعہ مفتی عارف حسین صاحب قبلہ، میرا دل اور میری جان ہے اعلیٰ حضرت، بول دیجیے مجھے سبحان اللہ، میرا دل اور میری جان ہے اعلیٰ حضرت، سرور دین کی پہچان ہے اعلیٰ حضرت، اور جڑ سے نزدیک کا ہر ایک پیر اکھڑ جائے گا، جڑ سے نزدیک کا ہر ایک پیر اکھڑ جائے گا، صرف آندھی نہیں طوفان ہے اعلیٰ حضرت۔ جی جی الفاتحہ علی روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رونق اسٹیج مقتدر علماء ملت اسلامیہ، ذوی الاحترام سامعین، پردہ نشین خواتین، عزیز بچوں، دور و دراز سے آئے ہوئے مہمانان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ آپ حضرات غالباً 11:15 سے لے کر اب تک نعت و منقبت کی خوبصورت اشعار سماعت کر رہے ہیں، تھوڑی دیر گفتگو بھی ہوئی۔ آج کا یہ پروگرام ایصال ثواب کے لیے ہے، کوئی بڑی کانفرنس یا جلسہ نہیں ہے جو دھواں دھار تقریب ہوگی۔ میں سوچتا ہوں کہ اصلاحی باتیں ہیں، اصلاحی ٹاپک پر روزمرہ کی زندگی اور مشاہدات، تجربات کی باتیں، ایکسپیرینس کی باتیں میں آپ حضرات کو کچھ بتاؤں، جس سے آپ کے دل و دماغ میں اس بات کا احساس پیدا ہو کہ آپ کس کام کے لیے یہاں آئے ہیں۔
آئیے سب سے پہلے زمین والے، زما والے، مکی والے، مکہ والے، لا مکہ والے، شفاعتی لحلی قبائر من امتی کا مزدائے جافزہ سنانے والے، یعنی امی سے بے کسا وقار بے جہاں سرور کون مکہ مالک ای و آ، یعنی حبیب الرحمن افضل الانسان جامع ایمان عالم کا سلطان خالق کا مہمان مخلوق کا میزبان، یعنی مظلوموں کا چارہ گر شکست دلوں کا چارہ ساز بیمار قرب اضطراب کا مسیحا، یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہر بار میں بنگلہ انداز میں درود پاک پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد آسمان سندر زمین سندر عرش سندر گج پالا، آسمان سندر زمین سندر عرش سندر گج پالا، তাহার থেকে অধিক সুন্দর আমার নবী মুস্তাফা। আল্লাহুম্মা صلی علی سیدنا مولانا محمد আকাশের ফেরেশতারা বলেন ও আমিনা পাক বিবি, আকাশের ফেরেশতারা বলেন ও আমিনা পাক বিবি, তোমার সুদামে জন্ম নিবেন, তোমার সুদামে জন্ম নিবেন শেষ জামানার নূর নবী। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائی آپ 2-3 گھنٹہ سے پروگرام میں ہیں، تھوڑی دیر اور برداشت کیجئے، جب تک میری گفتگو ہو آپ کا دل اور دماغ یہی رہنا چاہیے، سوچ و فکر یہاں رہنی چاہیے۔ آج آپ اور ہم جس پروگرام میں جس محفل میں بیٹھے ہیں، جس پروگرام کو آج آپ اور ہم اٹینڈ کر رہے ہیں، یہ کوئی خوشی کا پروگرام نہیں، کسی کا اس دنیا سے چند روز پہلے جانا ہوا ہے، انہی کی روح کو ثواب ایصال کرنے کی نیت اور غرض سے ہم اور آپ یہاں اکٹھا آئے۔ یہ کرونا کی مہاماری کووڈ-19 کا پیریڈ اور اس کا زمانہ چل رہا ہے، ہر انسان موت سے خوف کھاتا ہے، موت سے بچنے کی تمنا کرتا ہے، سب سوچتا ہے کہ ہم موت کی گرفت سے، موت کے چنگل سے، موت کی پکڑ سے بچ جائیں۔ لوگ کورونا کی اس مہاماری میں کووڈ-19 کے اس سیزن میں مسافہ تک کرنے کو راضی نہیں ہے۔ معانقہ کی بات تو چھوڑو، 2 گز دوری مست ہے ضروری۔ اگر جان کی حفاظت چاہتے ہو، زندگی بچانا چاہتے ہو، سرکشت رہنا چاہتے ہو تو لوگوں سے دوری بنا کے رکھو، منہ میں رومال، ماسک یا گمچھا باندھ کر پھرا کرو، سینیٹائزر کا استعمال کیا کرو تاکہ تم بچ جاؤ گے۔ مگر یاد رکھنا، سینیٹائزر استعمال کرنے سے، 2 گز دوری کرنے سے، ماسک لگانے سے کورونا کی مہاماری سے آپ بچ تو سکتے ہیں، مگر موت کی گرفت سے بچ موت کے چنگل سے بچ نہیں سکتے، موت کے آغوش سے تم نکل نہیں سکتے۔ میرا رب فرماتا ہے ان الموت الذی تفرون منہ، اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، آپ اپنے امت سے میرے بندے سے کہہ دیجئے ان الموت الذی تفرون منہ، اے لوگوں جس موت کے خوف سے، جس موت کے ڈر سے، جس موت کے بھے سے بھاگتے ہو فإنہ ملاقیکم، تو یہ موت یقیناً تم کو پکڑ کے رکھے گی۔ موت ہمیں اور آپ کو یقیناً پکڑے گی، اپنی گرفت میں لے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جہاں انسان کی موت ہوتی ہے
انسان وہاں پہنچ جاتا ہے. نہیں انسان اتنا بزدل نہیں ہے, انسان تو ڈرپوک ہے, وہ موت کے خوف سے بھاگتا ہے. موت جہاں ہے وہاں انسان نہیں جاتا, بلکہ انسان جہاں رہتا ہے موت وہاں پہنچ جاتی ہے. رب کا قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ مُلَاقِكُمْ, تم جہاں بھی رہو موت کا فرشتہ وہاں پہنچ جائے گا, تمہیں وہی موت آئے گی. اے میرے رب پروردگار پالنہارا, میرے خالق و مالک, موت آئے گی تو کیا کرنے کے لیے؟ تو میرا رب کہتا ہے ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, جب موت آئے گی تو موت تم کو لے کر وہاں جائے گی جس کو غیب کا بھی علم ہے, جس کو حاضر کا بھی علم ہے, جس کو ظاہر کا بھی علم ہے, جس کو پوشیدہ کا علم ہے. یعنی جس کی نظر خلوت میں بھی ہے, جس کی نظر جلوت میں بھی ہے, جو بزم کو بھی دیکھتا ہے رزم کو بھی دیکھتا ہے, اس کی بارگاہ میں یہ موت ہمیں اور آپ کو حاضر کر دے گی. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, جب ہم اور آپ کو یہ موت اس ذات کی بارگاہ میں حاضر کرے گی جسے ظاہر اور پوشیدہ کا علم ہے, تو وہاں اعمال کے دفتر کھول دیے جائیں گے, اور لوگوں منہ میں پٹیاں باندھی جائے گی, منہ میں سر بند کر دیا جائے گا, اب تمہاری زبان گول ہو جائے گی, بول نہیں پاؤ گے. رب فرمائے گا ہاتھ بتا اس انسان نے زندگی کیسے گزاری ہے, پیر تو بتا اس نے زندگی کے شب و روز کس طرح گزارے ہیں. کان کھلے رہیں گے, زبان بند رہے گی, آنکھیں کھلی رہے گی. اب یہ ہاتھ اور پیر ہمارے اپوزٹ میں, ہمارے ورود میں کھڑا ہو کر گواہی دے گا پروردگار زندگی کے کارنامے اس طرح ہیں, اس نے شب و روز اس طرح سے گزارے ہیں. ظاہر کا یہ حال ہے, پوشیدہ کا یہ حال ہے. میرا رب فرماتا ہے اے لوگوں, جب تمہیں موت آئے گی اور موت میری بارگاہ میں تمہیں حاضر کرے گی تو اعمال کے دفتر کھول دیے جائیں گے. تمہاری زندگی کے سارے کالے کرتوت, اچھے برے سب کچھ رب کی بارگاہ میں کھلا پیش ہوگا. تمہاری زبان بند ہوگی, کان سے سب کچھ سنو گے اور آنکھ سے سب کچھ دیکھو. یہ صرف میرا نہیں, پوری انسانیت کا, آپ کا, آپ کے باپ کا, میرا, میرے باپ کا, سب کا یہ حشر ہونے والا ہے, سب کا یہ معاملہ ہونے والا ہے. ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں جنہیں لوگ شیخ شرف الدین سعدی شیرازی کے نام سے جانتے ہیں. وہ فرماتے ہیں جہاں ہے برادر نمانت بکس, دل اندر جہاں آخری بندوبست, مکن تکیا برل کے دنیا میں پوش کہ بسیار کسجو پرور میں پوش کیا ہنگے رفتن پورت جانے پاک کہ برتخت مردن کے بغوے خاک. وہ فرماتے ہیں میرے بھائی, میری بہن, میری ماں, میری خالہ, میرے چچا, میرے بھائی, سب یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. ارے دل لگانا ہے تو دنیا دار سے نہیں, احمد مختار سے لگا. دل لگانا ہے تو دنیا سے نہیں, خالی کے دنیا سے لگا. یہ دنیا سے دوستی کرنا بے وفائی ہے. دل اگر لگانا ہے دوستی کرنی ہے, محبت کرنی ہے, پیار اور پریم کرنا ہے تو دنیا سے نہیں, خالی کے دنیا سے دوستی کرو, وہ کبھی دھوکہ نہیں. دنیا دار سے محبت کرو گے تو دھوکہ کھاؤ گے, احمد مختار سے کرو گے تو بیڑا پار ہو جائے. جہاں برادر نمادت بکس, یہ میرے بھائی, میری بہن, میرے دوست, میرے حباب, یہ دنیا کسی کے ساتھ نہیں. دل اندر جہاں آخری بند بس, دنیا کے اندر دنیا پیدا کرنے والے خالق کے ساتھ زندگا. مکن تکیا در مل کے دنیا و خوش کہ بسیار کس تو پرور و خوش. چھپر توڑ اور گرد نوا کے سنی جنتی مسلمانوں, آج ہم سمجھتے ہیں ہمارا حال اور کنڈیشن سچویشن یہ ہے, ہم سمجھتے ہیں ہم خوبصورت ہے, ہم سمجھتے ہیں ہم باڈی بلڈر ہے, ہم سمجھتے ہیں ہم باڈی بلڈر ہے, ہم سمجھتے ہیں طاقتور ہے, ہم سمجھتے ہیں زمیندار ہے, ہم سمجھتے ہیں بڑی بڑی بلڈنگیں ہم نے بنائی ہے, ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس دولتوں کا انبار ہے, ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس خزانہ کا انبار ہے. لوگ اپنی اپنی سوچ اور فکر کے حساب سے, اپنی اپنی کیٹیگری کے حساب سے تصور و خیال کرتے ہیں. کسی کو اپنی زمین پر ناز ہے, کسی کو خوبصورتی پر, حسن و جمال پر ناز ہے, کسی کو دولت پر ناز ہے, کسی کو اور کسی چیز پر ناز ہے. مگر شیخ سعدی فرماتے ہیں مکن تکیا پر مل کے دنیا و پوش کہ بسیار کسجو پرور و پوش. اے شخصوں, تم جیسا خوبصورت دنیا میں کروڑوں پیدا ہوئے ہیں, مٹی کا ڈھیر بن گئے ہیں. تم جیسے زمیندار ہزاروں پیدا ہوئے ہیں, آج زمین کے اندر دفن ہے. تم جیسے طاقتور سورما بہت پیدا ہوئے ہیں, سب کے سب زمین
हैं। सिकंदर का नाम आपने सुना होगा। जब सिकंदर का इंतकाल हुआ, इंतकाल से पहले पहले अपने मुरीद खास, अपने वजीरों को, चाहने वालों को बुलाया। बुलाने के बाद कहा, ये लोगों सुनो, जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा हूँ, जब मेरा इंतकाल हो जाए मुझे गुस्ल दे दो, कफन दे दो। एक रिक्वेस्ट है, मेरे दोनों हाथों को कफन से बाहर। हमारे यहाँ, आपके यहाँ लोगों को जो हम कफन देते हैं तो पूरे जिस्म को कफन के अंदर रखते हैं, मगर सिकंदर ने कहा था मेरे दोनों हाथों को कफन से बाहर रखना। वजीरों ने कहा, हुजूर लोग एतराज करेंगे, उलमा मुफ्ती हो सारे लोग आएंगे, लोग एतराज करेंगे कि कफन के अंदर हाथ होता है, तुमने बाहर क्यों रखा? तो सिकंदर ने कहा, जब एतराज करने वाले एतराज करे तो मेरा जवाब तमाम एतराज करने वाले को दे देना। जब मेरी जनाजा में करोड़ों के लाखों के संख्या में लोग जमा होंगे और दीदार के लिए देखने के लिए आएंगे, हाथों को कफन से बाहर देखेंगे, सवाल करेंगे तो सबको एक ही जवाब देना। दुनिया वालों, सिकंदर सोकर लेट कर कह रहा है कि मैं पूरी दुनिया का बादशाह होकर खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा है। तो सिकंदर अपने साथ अपने हाथ में कुछ नहीं ले जा रहा है, तो तुम भी अपने साथ में कुछ नहीं लेके जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आरिफ अनवर नईमी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। सिकंदर ने कहा कफन के बाहर हाथ रखना। गोया के सिकंदर ने दुनिया वाले को मैसेज और संदेश दे दिया, पैगाम दे दिया, लोगों मुझ जैसा बादशाह भी खाली हाथ दुनिया से जा रहा है। तो तुम कितने कौड़ी के मालिक हो, कितने लाख और करोड़ के मालिक हो, तुम्हें भी खाली हाथ जाना है। लोगों खाली हाथ पैदा हुए हो, खाली हाथ जाओगे। ये मकान जाने वाला है, ना दुकान जाने वाली है, ना जमीन जाने वाली है, ना जायदाद को साथ लेके जाओगे, ना बीवी बच्चे अजीज हमारी दोस्त अहबाब, कोई साथ जाने वाला नहीं है। अगर साथ जाने वाला है तो अच्छा या बुरा अमल, इसलिए अमल की दुनिया में आओ, कुछ नेक काम कर लो। शेख सादी फरमाते हैं, खैरे कुलाए फुला व गनीमा शुमार पेशर के बाल पर आयत के फुला नमानत। मेरे दोस्त, कुछ भलाई कर लो, कुछ अच्छा काम कर लो, कुछ नेकी कर लो, नमाजें पढ़ लो, रोजा रख लो, ज़कात दे दो, सदका व खैरात कर लो, कुछ काम कर लो। कब तक करेंगे शेख? तो शेख फरमाते हैं, पेशर के बाल पर आयत के फुला नमानत। उससे पहले पहले लोग कहें कि झपड़तोड़ का खुला आदमी दुनिया में नहीं रहा, कहने से पहले पहले नेकी कर लो, नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, कुछ अच्छा काम कर लो। जिस दिन कहने लगे खुदा आदमी अब हमारे बीच नहीं रहा, उससे पहले पहले कुछ भलाई कर लो, कुछ नेकी कर लो। करेंगे तो फायदा क्या होगा? तो वो शेख फरमाते हैं, तू आहंगे रखन कुलत जाने पाक जे बर तख्त मुर्दन से बगू ये खाक। अरे मेरे भाई सुन, अगर तुम परहेजगार हो, मुत्तकी हो, नेक हो, तकवा शियार हो, रब की खशियत दिल में रखते हो, मुस्तफा की मोहब्बत सीने में रखते हो, और अपने कल्बो जिगर को मोहब्बत रसूल का खजीना और गंजीरा बना के रखे हो, इश्क़ मुस्तफा का चराग सीने में जला के रखे हो। मकान नहीं बनाए हो, कोई गम नहीं है, दुकान नहीं है, कोई गम नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, कोई गम नहीं है। अगर टूटी हुई झोपड़ी में भी मौत आए तो गम मत खाना, क्योंकि तुम्हारे सीने में इश्क़ मुस्तफा का चराग जल रहा है, तुम्हारे दिल में मोहब्बत रसूल। नारे रिसालत हज़रत मुफ्ती आरिफ नईमी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वो शेख फरमाते हैं, अगर दुनिया की दौलतों को जमा नहीं किया तो गम मत खाना। खोपड़ी में इंतकाल हो तो वहां भी मौत का जायका चखना पड़ेगा। अगर आलीशान महल और बिल्डिंग बनाए हो, आखिरत की तैयारी नहीं किए हो, तो वहां भी मौत का जायका चखना पड़ेगा। मगर दोनों मौत में फर्क ये है कि दुनिया के लालच में अपने माबूद को फरामोश करके आलीशान महल में बिल्डिंग में मौत आएगी, जब तुम्हें रिश्तेदार कब्र में दफनाएंगे तो जहन्नम के
बिछोना कब्र में बिछा देगा, फूलों का बिछोना बिछा दिया जाएगा, रहमत का शामियाना लटका दिया जाएगा। दुनिया और आखिरत में यही फर्क है। आखिरत की तैयारी करोगे तो कब्र में बाद में लेटोगे, पहले फरिश्ते तुम्हारे लिए जन्नती बिछोना बिछा देंगे। अब गौर कीजिए, मैंने कहा कि रोजमर्रा जो आप हजरात देखते हैं, मुशाहदात की मैं बात कर रहा हूँ, रोजमर्रा जो बातें होती है, कितने लोग यहाँ पर हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक भी ऐसा आदमी हो जो साल में कम से कम एक मरतबा जनाजा में हाजिर हो। अरे जनाजा में हाजिर आप और हम होते हैं, कभी कभी तो हफ्ता में जनाजा की नमाज पढ़ानी पड़ती है। अपने हाथ से हम और आप कब्र में लोगों को उतारते हैं, मिट्टी देकर दफन करके वापस आते हैं। 6 महीना के बाद उसी कब्रिस्तान में जाने के बाद कब्र कहाँ पे है, जो इंसान खुद कब्र में उतारा था मुर्दा को, उसको भी पता नहीं है कि ये कौन सी कब्र। हमें और आपको अपने हाथों से कब्र में उतारते हैं, 6 महीना साल भर के बाद कब्र के निशान और नाम को नहीं भूलता। बस नामवर बजेरे जमीन कतल करदान कस हस्ती हुए जमीन पर निशान नमानत। वो फरमाते हैं बहुत नाम वाले, शान वाले, इज्जत वाले, शोहरत वाले जमीन के अंदर दफन है, और जमीन के अंदर ऐसे दफन है कि जमीन के ऊपर आज उनका नाम और निशान बाकी है। आप में से कोई ऐसा इंसान हो जो अपने परदादा के परदादा का नाम बता दे? एक भी आदमी नहीं बता पाएगा। अरे क्यों? आपके परदादा का परदादा आपके लिए भीतावारी जमीन नहीं छोड़ा था, बाद की खेत की जमीनों को नहीं छोड़ा था, अपनी जिंदगी की तमाम कमाइयों को आपके लिए नहीं छोड़ा था। आपके परदादा ने उनके बेटा के लिए, उन्होंने उनके बेटा के लिए, उन्होंने उनके बेटा के लिए, उन्होंने आपके लिए छोड़ा। तो ये सिलसिलावार जमीन, जायदाद, घर, मकान सब कुछ जो छोड़ कर जाते हैं लोग उन्हें भूल जाते हैं, तो जिसके लिए कुछ नहीं छोड़ा हो भला कैसे। ये लोगों, दुनिया धोखादार है, ये दुनिया बेवफा है। दुनिया के चक्कर में रहकर अपने माबूद को मत भूल जाओ, अपने खालिक को मत भूल जाओ, अपने मालिक को मत भूल जाओ। अपने खालिक को मालिक से रिश्ता, कॉन्टेक्ट, संपर्क को मजबूत करो। यहाँ अगर अपने माबूद से रिश्ता और संपर्क को मजबूत करके जाओगे, सुनो लोगों, हम और आप तो जानते नहीं है, हम और आप अपने मुर्दों को कब्रिस्तान में दफनाते हैं, कब्रिस्तान में कब्र खोदते हैं। उलमाए किराम फरमाते हैं कि जिसकी जहाँ पे कब्र होती है वो कब्र की मिट्टी सुबह आवाज देती है, शाम में आवाज, सुबह पुकार के कहती है मेरी कोख में सोने वाला, क्या तेरा वक्त नहीं हुआ, कब आएगा? शाम होती है, मिट्टी पुकारती है मेरी पीठ पर सोने वाला, तेरा समय नहीं हुआ, वक्त नहीं हुआ, कब आएगा? सुन, मैं वो घर हूँ जिसमें लाइट नहीं है, मैं वो घर हूँ जिसमें रोशनी नहीं है, मैं वो घर हूँ जिसमें बिछोना नहीं है, मैं वो घर हूँ जिसमें तकियार बारिश नहीं है, मैं वो घर हूँ जिसमें पंखा नहीं है, मैं वो घर हूँ जिसमें कूलर फ्रीज नहीं है, मैं वो घर हूँ जिसमें बिछोना और शामियाना नहीं है। ऐ शख्स, मेरी कूख में, मेरी पीठ में सोने के लिए तुम्हें आना यकीन है, मगर सूद आने से पहले अपने साथ बिस्तर का इंतजाम कर लेना, शामियाना का इंतजाम कर लेना, लाइट और रोशनी का इंतजाम कर लेना, हवा और पंखे का इंतजाम कर लेना, कूलर और फ्रीज का इंतजाम करना। हर तरह से सजाया हमने इस घर को, इस घर में ठहरना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है। कैसा है वो घर मालूम नहीं, सामान्य सफर तुम ठीक करो, अब होगा सफर मालूम। इस घर में हमें 10, 20, 25, 50 साल रहना है, हर तरह से हम सजा कर रखते हैं, डेकोरेशन में कमी भी करते हैं, मगर जिस घर में हजारों साल रहना है, कैसा है वो घर मालूम नहीं। दोस्तों, कोई भरोसा नहीं जिंदगानी का। बस मैं मुख्तसर में 2-3 छोटी-छोटी बातें बयान करके गुफ्तगू समेट लूंगा। कोई भरोसा नहीं दोस्तों जिंदगानी का। अरे जिंदगी बुलबुला है पानी का। मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ, जिस दिन आप पैदा हुए थे और आज आपकी बॉडी का कोई सामान बदला है? बस समझ में आ रही है? आपके शरीर में, आपके जिस्म में जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन से लेकर आज तक कोई सामान आपने चेंज किया? कुछ बदला? कुछ चीजें ऐसी हैं, जब आप पैदा हुए थे आपके मुंह में दांत
दांत है भाई, दांत बात में हुए ना। तो आप बगैर दांत के पैदा हुए थे, सर में लंबा लंबा बाल है, उतना उस वक्त बाल नहीं था। हाथ वही है, पैर वही है, आंखें वही है, जबान वही है, दिल, गुर्दा, जिगर, फेफड़ा सब कुछ वही है। मगर एक बात याद रखो मेरे भाई, मेरे दोस्त, जिस दिन तुम यहाँ आए थे और आज में फर्क इतना है कि उस दिन दुनिया में जब कदम रखे थे तो अपने पैरों पे आप खड़ा नहीं हो पा रहे थे। मुर्गी का चूजा आपने देखा है, मुर्गी के बच्चा को क्या बोलते हैं आप लोग? चंगना। देखे है ना आप? मुर्गी का चूजा, मुर्गी का चंगना जब मुर्गी के अंडा से बाहर निकले तो 5 मिनट के अंदर दौड़ना शुरू कर दिया। दिखाई कि नहीं? बकरी का बच्चा आपने देखा है, बकरी का बच्चा पैदा होने के आधा घंटा के अंदर दौड़ना शुरू कर दे। गाय का बछड़ा पैदा हो तो आधा 1 घंटा के अंदर दौड़ना शुरू कर दे। इंसान अपने गुर्दे और जिगर पे हाथ रखकर बता, अपने पैरों पे चलने के लिए कम से कम तुम्हें 1 साल का टाइम लगा। सच बोल रहा हूं। गोया के खुदा बंदों को समझाना चाहता है, बता रहा है मेरा बंदा सुन, ये मुर्गी का चूजा 10 मिनट में चले, बकरी का बच्चा आधा घंटा में चले, गाय का बछड़ा आधा घंटा में चले। मैंने तुमको इतना कमजोर बनाया है कि अपने पैर पर खड़ा होने के लिए 1 साल का समय चाहिए। किस बात के गुरूर में हो, किस बात के तकब्बुर में हो, किस बात के घमंड में हो, अपने आप को ज्यादा मस्तान मत समझो। अरे अपनी पैदाइश पे नजर रखो। बकरी का बच्चा 10-15 मिनट आधा घंटा में गली और मोहल्ले में रोडों में दौड़ना शुरू कर दे। तुम इतना कमजोर हो कि 1 साल में अपने पैर पर खड़ा हो रहे हो। 1 साल में खड़ा होने के बाद बकरी का बच्चा माँ के सहारा के बगैर चलता है, तुम अपने माँ बाप भाई बहन के सहारा के बगैर चल नहीं पाए। और 1 से 1.5 साल का समय और भी लगा किसी के सहारे, किसी की उंगली पकड़ के चलने के लिए। कभी तुमने अपने बचपन के गौर किया, अपनी पैदाइश के बारे में सोचा कि खुदा ने हमको किस कंडीशन में पैदा किया? वो हाथ जिसको तुम उठा नहीं सकते, आज उससे तुम 50 किलो का वजन तोड़ते हो। वो सर उंगली से दबाए तो सर का भेजा तक उंगली पहुंच जाए, आज उस सर में 1 कुंडल का बोझा रखते हो। ये खुदा ने महज अपने फजल और करम से किया है। बता, तुम एक बात मुझे बताओ मेरे दोस्तों, आपके दोनों हाथ है, 5 लाख रुपए कोई देना चाहे दोनों हाथ देंगे? दोनों पैर है 5 लाख में बेचोगे? दोनों आंखें हैं 5 लाख में बेचोगे? दिल, जिगर, गुर्दा, फेफड़ा 20 लाख में बेचोगे? गला 25 लाख में कटवाओगे? सीना 10 लाख में दोगे? कोई दोगे भाई? कितने में तुमने खरीदा? कितना रब को तुमने दिया है? रब का शुक्र अदा करो। मेरा रब फरमाता है, कुल लौ कानल बहर मिदादन लिकलिमातिल्लाह वनफदल बहर क़ब्ल अन तनफदा कलिमात रब्बी वलौ जीना बिमिस्लिही मददा। मेरा रब फरमाता है, मेरे हबीब, मेरे बंदों को, अपनी उम्मत को कह दो कि अगर कायनात में हमने 7 समंदर बनाए हैं, पूरी दुनिया के 7 समंदर के पानी को रोशनाई बना लो, सियाही बना लो, इंक बना लो, दवात बना लो, लिखने का सामान बना लो, और कायनात के सारे दरख्तों को काट कर छील कर कलम बना लो, पूरी इंसानियत मसरूफ अमन हो जाए और रब का शुक्र अदा करना चाहे, रब की तारीफ और तौसीफ का हक अदा करना चाहे, तो 7 समंदर का पानी सूख जाएगा, सारे कलम टूट जाएंगे, मगर रब की तारीफ और तौसीफ का हक अदा नहीं। अरे अपनी बॉडी को देखो, अपने आप को देखो, पड़ोसी की तरफ मत ताक झांक करो, दूसरे की तरफ मत नजर डालो, अपने आप में देखो कि खुदा ने तुमको करोड़ों के संपत्ति को मुफ्त में दे दिया, मुफ्त में, फ्री में दिया है। एक किडनी अगर खराब हो जाए तो 10, 15, 20 लाख तक लोग खर्च करते हैं, मगर पहले जैसा तंदुरुस्त नहीं होता, डबल किडनी आता है। सब कुछ खुदा ने हमें और आपको अता किया है, हमने 1 पैसा भी रब को नहीं दिया है, महज अपने फजलो करम से। मगर एक बात बताओ, सब कुछ ठीक है और जिस्म से एक चीज निकल जाए तो कोई कहेगा कि गांव में इसको रखा जाए? आपके वालिद साहब, हमारे मोहतरम अब्दुल करीम साहब का इंतकाल हुआ, इनके लड़के हैं जनाबे मौलाना हाफिज इजहार अशरफ साहब, वालिद साहब का इंतकाल हुआ। वालिद साहब को मालिम है, हाफिज है, घर में नहीं रखा,
कब्रिस्तान में, बयाबान में, मिट्टी के अंदर जो हजरत बाप से मोहब्बत की थी, बाप से प्यार नहीं था, बाप का दर्द दिल में नहीं था, शफकत बेदरी कहाँ है? आपने अपने बाप को मिट्टी के अंदर दफनाया क्यों? तो हाफिज इजहार अशरफ साहब का जवाब होगा, क्या करें हजरत, बाप की बॉडी में कुछ कमी थी। मैंने कहा हाथ नहीं था, पैर था, आंखें थी, कान थे, जबान थी, नाक थी, जिस्म के सारे आजा थे, बॉडी के सारे पार्ट थे, जिसमें लेकर पैदा हुए थे, क्या इसमें कुछ कमी हो गई थी? कहा नहीं, जितना लेकर दुनिया में आए थे सब कुछ था, दांत लेकर नहीं आया था, दांत भी था, मगर वहां और यहाँ में फर्क ये है कि पैदाइश के वक्त एक चीज लेकर आए थे, दुनिया में वो चीज खो गई, कहीं चली गई। मैंने कहा वो कौन सी चीज है? कहा उसे रूह कहते हैं, उसे जान कहते हैं। वो रूह जिस्म से अलग हो गई, जुदा हो गई, हाथ पैर जबान बॉडी के सारे पार्ट बेकार हो गए, कोई भरोसा नहीं दोस्तों जिंदगानी का। जिंदगी बुलबुला है पानी का, रोड के किनारे में बरसात का मौसम आ रहा है, खड़ा हो जाना, जब बारिश झमाझम बरसने लगे, बरसात का मौसम हो, किसी पुल के सामने आना, एक तरफ से पानी बहकर आएगा, दूसरी तरफ पानी निकलेगा, जिस तरफ पानी निकलेगा पानी चक्कर मारेगा, चारों तरफ से घूमेगा, जब पानी चारों तरफ से घूमता है तो पानी के ऊपर बैलून पैदा होता है, गुब्बारा पैदा होता है, फौकना पैदा, बैलून वो गुब्बारा असल में पानी का एक कतरा है, उस पानी के एक कतरे से हवा का एक कतरा दोस्ती कर लेता। बोलिए सुभान अल्लाह। पानी का एक कतरा, हवा का एक कतरा, दोनों का संगम और मिलन हो जाए, दोस्ती हो जाए, तो सतह आप पर पानी के ऊपर बैलून नुमा, फुकना नुमा गुब्बारा पैदा होता है। लोगों बिना तमसील आरी परवर नईली को बोलने की इजाजत दो, ये मिट्टी का पुतला है, ये मिट्टी की बॉडी है, सब कुछ हाथ में गोश्त है, बदन में ताकत है, सब कुछ है, मगर इस मिट्टी के पुतला से रूह का एक कतरा कनेक्शन जोड़ लेता है, दोस्ती कर लेता है। पानी और हवा में दोस्ती हो तो गुब्बारा बनता है, एक मिनट के अंदर वो पानी और हवा की दोस्ती खत्म हो जाती है और फिर पानी पानी में मिल जाता है, हवा अपना रास्ता ले लेती है। क्या तमसील हमें बोलने की इजाजत दो, मिट्टी के इस पुतला से रूह का कनेक्शन होता है, दोस्ती होती है, चंद साल के बाद रूह अपना रास्ता लेती है, फिर मिट्टी के इस पुतला को मिट्टी के अंदर। यही हाल मेरा है, यही हाल आपका है, इसलिए मेरा शेख शरफुद्दीन सादी शिराजी फरमाते हैं, ऐ लोगों अपने जिस्म को कम सवारो, अपने दिल को ज्यादा सवारो, अपनी रूह को सवारो, अपने कल्बो जिगर की तरफ ध्यान दो, अपने रूह की तरफ ध्यान दो। अगर रूह पाकीज़ा है, पाक है तो समझ लो बेड़ा पार है, अगर दिल नापाक है तो ना पाक खुदा की मोहब्बत बसेगी, ना पाक रसूल का प्यार बसेगा, ना पाक गौस की मोहब्बत बसेगी, ना पाक खाजा की अकीदत बसेगी। आप जानते नहीं है हमारा खुदा भी पाक, हमारा रसूल भी पाक, आल भी पाक, अतहार भी पाक, गौस भी पाक, खाजा भी पाक, अरे इमाम भी पाक, पंजतन भी पाक। इन सारे पाक हस्तियों की मोहब्बत के लिए दिल को भी पाक होना जरूरी है। अगर दिल ना पाक रखोगे तो इन पाक हस्तियों की मोहब्बत। लोग कहते हैं ना कि हम तकरीर सुनते हैं कुछ होता नहीं है, अरे पहले दिल की तरफ झांको, अपना दिल नापाक लेकर आए हो, पहले दिल को पाक कर लो, फिर पाक हस्तियों की मोहब्बत बच जाएगी, इन पाक नफूस से खुशिया की मोहब्बत बच जाएगी। एक बार दूर पाक पेश की जाए सैयदना शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने शुरू में कहा है ये कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस या जलसा नहीं है कि धुआंधार तकरीर होगी, मैं इस्लाही टॉपिक पर कुछ बातें आपको बताने के लिए यहाँ हाजिर आया हूँ। हजरात, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, अपनी आखिरत के बारे में, आकीबत के बारे में सोचो। तुम्हारा बेटा भी काम नहीं आने वाला, बेटी भी काम नहीं आने वाली,
वाली अजीज व अकारिब कोई काम नहीं आएंगे। काम अगर आने वाली कोई शय है तो एक रब की मोहब्बत है, एक मुस्तफा का प्यार है, एक मुस्तफा जाने रहमत की अकीदत है। जब सब साथ छोड़ देंगे तो मुस्तफा का प्यार काम आएगा। इसलिए लोगों अपने नबी से कनेक्शन को मजबूत करो, अपने रसूल से अकीदत और मोहब्बत रखो। हदीस पाक में आया है मेरे नबी के चचेजाद भाई हजरत कुसुम इब्ने अब्बास है, नबी को आखिरी दीदार सहाबा कर रहे हैं। सरकार को कब्र मुबारक में उतार दिया गया है। कब्र अनवर में सहाबे किराम का मजमा चारों तरफ से घिरा हुआ है। कुसुम इब्ने अब्बास का बयान है, वो कहते हैं कि मैंने देखा कि मेरे नबी के लम्हाए मुबारक हिल रहे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी के लम्हाए मुबारक हिल रहे हैं। कुछ नबी कह रहे हैं, कुसुम इब्ने अब्बास कहते हैं मैं अपने कान को नबी के लम्हाए मुबारक के करीब किया तो क्या सुना, मुस्तफा फरमा रहे हैं अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती। ए गुनहगार उम्मती, तुम्हारा पैगंबर दुनिया से रुखसत हो रहा है तो उम्मती को याद करते हुए आज तुम ठप्पा जमा वाले मुल्लों के कहने पर अपने नबी की मोहब्बत और अकीदत को दिल से निकाल रहे हो। तुम जैसा अहमक और नादान दुनिया में कौन होगा। मुस्तफा दुनिया से जा रहे हैं तो तुम्हें याद करते हुए तुम कैसा उम्मती हो जो अपने नबी को भूलो, कैसा उम्मती हो जो अपने नबी से कनेक्शन तोड़ रहे हो, कैसे उम्मती हो कि नबी के संपर्क में भी आ रहे हो। उम्मती हो अगर बचाने वाला कोई है तो वो आमना का लाल है, मोहम्मद अरबी है। इसलिए आमना के नाम से अपने संपर्क और कॉन्टेक्ट को जितना मजबूत करोगे उतनी ही आसानी के साथ बेड़ा पार होगा। मुस्तफा के दर के बगैर, मुस्तफा के सहारा के बगैर, मुस्तफा की शफाअत वसीला के बगैर किसी का बेड़ा पार नहीं हो सकता। रब्बी हबली उम्मती नबी ने कहा, मुस्तफा अगर चाहते तो कहते अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श, मेरी उम्मत को बख्श दो। नहीं नहीं, मेरे मुस्तफा जानते हैं उम्मत गुनहगार है, पापी है, सियाकार है, बदकार है, जनाकार है, शराबी है, बहुत कुछ है। इसलिए उम्मत के जब कारनामे, उम्मत के दफ्तर को खोला जाएगा तो रब कहारो गजब फरमाएगा। वो रब कहारो जब्बार है, जब वो कहारो जब्र फरमाएगा तो किसी की बख्शिश नहीं हो पाएगी। इसलिए मुस्तफा फरमाते हैं ऐ मेरे अल्लाह मेरी उम्मत के आमाल नामे को मत खोल, उम्मत का मामला मेरे सुपुर्द कर दे, उम्मत को मेरे हवाले कर दे ताकि उम्मत को मैं अपने साथ लेकर जन्नत में चला जाऊं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसलिए मुस्तफा जाने रहमत हमको और आपको रब के सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहते कि मेरा बंदा रब के सामने जब जाएगा, नामे आमाल खोला जाएगा तो अपने माबूद की बारगाह में शर्मिंदा हो जाएगा, शर्मसार होगा। मेरे नबी इतना करम फरमा रहे हैं कि उम्मत का सारा मामला, सारा मैटर अपने दस्ते कुदरत में लेना चाहते हैं, अपने हैंड में लेना चाहते हैं कि परवरदिगारा उम्मत का मैटर मुझे सौंप दे, उम्मत का मामला मेरे हवाले कर दे ताकि उम्मत को साथ लेकर मैं जन्नत में जाऊं। जो नबी जिंदगी भर उम्मती उम्मती कहे वो उम्मती के साथ या नबी ना कहे। इसलिए लोगों को या नबी कहो, शाम नबी या नबी कहो, दिन रात में या नबी कहो, या नबी कहते जाओगे। मुस्तफा की बारगाह में तुम्हारी ये अकीदत, तुम्हारा ये सलाम पहुंचता रहेगा, मुस्तफा से प्यार होगा, मुस्तफा से कनेक्शन और कॉन्टेक्ट मजबूत होगा। यहाँ भी बेड़ा पार होगा, वहाँ भी बेड़ा पार होगा। जिस मरहूम के लिए आप और हम यहाँ आए हैं इसाले सवाब की गर्ज से, इसाले सवाब की नीयत से, अब जनाब हाफिज इजहार अशरफ साहब राजभवन खाने का इंतजाम है, लोगों को दावतें की है, सबका शुक्रिया अदा, इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कि आपके हजरत की दावत से आप हजरात आए हैं। मर के आप लोग खाना खाने के लिए आए हैं। आपके घर में गोश्त नहीं बनता है, चावल नहीं बनता है, सब कुछ बनता है। यहाँ आए क्या करने के लिए? तो सब यही बोलते हैं इसाले सवाब के लिए। इसाल का माना पहुँचाना, सवाब तो सवाब नेकी, सवाब पहुँचाना, नेकी पहुँचाना। नेकी करोगे तब ना पहुँचोगे।
भाई कुछ होगा तब ना पहुंचाओगे, कुछ किए नहीं, बस घर से आ गए, काम काज छोड़ के मकई सूखने दिए, बच्चों को समझा दिए कि आने में लेट हो तो मकई जमा करके प्लास्टिक ढाप देना। कुछ नेकी अपने साथ लाए नहीं तो पहुंचाओगे कैसे? इसलिए आज के बाद जिसके भी 40वां में, 30वां में, 10वां में जाओ तो अपने साथ कुछ नेकी का जखीरा लेके जाओ। कुरान पढ़ने जानते हो, 1-2 सिपारे कुरान की तिलावत कर लिया करो, दुरूद पाक पढ़ लिया करो, औलाद वज़ाइफ पढ़ लिया करो, कलमा शरीफ का विर्द कर लिया करो, ताकि जिसके इसाले सवाब के लिए आते हो उसको कुछ फायदा हो जाए। घर वाले का मकसद यही होता है कि मीलाद की बरकत से, इसाले सवाब के वसीले से खुदा मेरे वालिद की मग़फ़िरत, वालिदा की मग़फ़िरत फरमाए। इसलिए अब तकरीरें बहुत सुनेंगे आप इंशाअल्लाह। आपके इस इलाके में खासकर छपरतोड़ गांव में बगरज़ खिताबत मेरी पहली हाजिरी है। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो तफसील के साथ गुफ्तगू होगी। जनाबे मरहूम मक़बूल अब्दुल करीम साहब के लिए कुछ ज़ख़ीरा नेकियों का जमा कीजिए और दिल में ये सोचिए कि अल्लाह मैंने जो कुछ पढ़ा इसका सवाब मरहूम अब्दुल करीम की रूह को पहुँचा। अब सब लोग चाहे तो अपनी अपनी आंखों को बंद कर ले, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, मगर ध्यान तवज्जो दुनिया से हटाकर आखिरत की तरफ कर ले, आंखें बंद कर ले तो बेहतर है। मैं जैसा पढ़ूं वैसा आप हज़रात भी पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात ने जो कुछ पढ़ा दिल ही दिल में ये सोचिए कि इसका सवाब मरहूम अब्दुल करीम की रूह को पहुंचा। सब लोग और चाहे तो इसके साथ अपने अहबाब, अपने माँ बाप, भाई बहन की भी नियत कर सकते हैं, मगर जिसकी महफिल में जिसकी रूह को इसाले सवाब के लिए आए हैं खासकर उनकी रूह तक इसका सवाब पहुंचाए। मैंने अपना जो कुछ पढ़ा सबका सवाब मरहूम अब्दुल करीम के रूह को इसार किया। आप भी अपने दिल में कह दें, दिल में कर दें कि जो कुछ हमने पढ़ा इसका सवाब मरहूम अब्दुल करीम की रूह तक पहुंच जाए। अल्लाह अपने फजल व करम से पहुंचा देगा, मरहूम के गुनाहों को माफ फरमाएगा, मग़फ़िरत फरमाएगा। इंशाअल्लाह कभी फिर मौका मिला तो तफसीली आप हज़रात के साथ गुफ्तगू होगी। ये छोटा सा मिलाद का प्रोग्राम था, कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस जलसा नहीं है। इंशाअल्लाह कभी जलसों में मुआदात तकरीर होती है तो मिलाद का प्रोग्राम है। मैंने शुरू में कहा कि इस्लाही टॉपिक पर थोड़ी देर गुफ्तगू होगी। लोगों अपनी आखिरत, अपनी आकिबत के बारे में सोचो, दुनिया का सारा काम भी करो, कारोबार भी करो, सब कुछ संभालो।
کھا لو مگر وقت نکالو آخرت کے لیے بھی کچھ ذخیرہ جمع کر کے جاؤ. مولا تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول عطا فرمائے اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال عطا فرمائے. بولنے میں جس قسمت کی اگر کمی ہو تو رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. میرے ساتھ آپ حضرات بھی توبہ استغفار کر لیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رہا گلشن پھول کھلتے رہیں گے, حیات باقی رہے تو چھپر تیل والے پھر بھی رہیں گے. اسلام زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد, علماء اہل سنت زندہ باد.